Hello everybody, welcome to Panu Schooling Point, and this video is about how to ship your product via ShipRocket. So this is basically part 2 वीडियो. जो डिटेल वाला वीडियो है वो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी वंस द लॉकडाउन ओपन्स अप कम्प्लीटली, बिकॉज जो कुरियर मुझे भेजना है, आई वॉन्ट टू शो दैट कुरियर एंड दैट प्रोसेस प्रॉपरली टू यू ऑल, सो दैट आपको भी आइडिया क्लियर हो जाए. एंड अभी लॉकडाउन है, दैट इज़ द रीज़न मैं वो बुक नहीं कर पा रही हूँ, and that is why I request you that please stay tuned to my channel and to the videos so that आपको वो वीडियो की भी हेल्प हो जाए. And that is why I'm not doing the detail वाला video right now. So I'll be doing the questionnaire video. जो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं on the first video, that is how do I pack my product and how do I ship my product. So first of all, thank you so much for loving that video, and you actually got some value from that video. So I'm so thankful to you all, and you have already put up so many questions. So I thought let's pick up few questions so that बाकियों को जिनको कुछ आइडिया नहीं है या फिर कुछ क्वेश्चंस है, so ये वीडियो से उनके वो क्वेश्चंस को आंसर मिल जाएंगे, and they will be finding easy to use ShipRocket, and वो आसानी से घर पे बैठ के अपना पार्सल कुरियर कर सकते हैं. So let's begin with the questions. So the first question is it compulsory to wrap in a box? Now actually it is not compulsory. I wrap in a box because उसका length and width आ जाता है, which we have to feed inside ShipRocket. And पहले से मैं boxes ही यूज़ करती आई हूँ because my products are paper products and वो थोड़े delicate हो जाते हैं, so box मुझे preferable होता है. ऐसा कंपल्शन नहीं है, बट वहाँ पे डायमेंशंस मेंशन करने के लिए आसानी हो जाती है. सो यू जस्ट नीड टू टेक केयर कि आपका लेंथ एंड विड्थ आ जाए, दैट्स इट. बॉक्सेस की ज़रूरत नहीं है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज GST नेसेसरी? नाउ GST इज़ नॉट नेसेसरी. आप अपने बिजनेस के डिटेल्स भी डाल सकते हो, एंड GST नंबर होना चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं है. I'm telling you from my example that I'm a startup, and अभी तक like right now I'm working as a single and मैंने register भी नहीं किया है. So it is just you have to create your account, do your KYC, that's it. So GST होना is not necessary. You can create your account and start shipping your products via this ShipRocket. So the next question is where to stick bill and manifest. Do they ship all over India? Now bill, that is generate label, जब हम क्लिक करते हैं we get a bill and which we download, and manifest जो हम जनरेट करते हैं, ये दोनों चीज़ें डाउनलोड करके we have to get a print out and stick your bill on your parcel and give the manifest to the person who is coming to pick up the parcel. So bill वहाँ पे स्टिक होना चाहिए because वहाँ पे डेस्टिनेशन मतलब करंट अपना जो एड्रेस है, टू एंड फ्रॉम वाला एड्रेस, सारे डिटेल्स, बार कोड, ये सारी चीज़ें आपके बिल पे होगी. So bill has to be stuck on the parcel, and manifest has to be given to the person. Manifest and bill का जो बार कोड होता है वो सेम होता है. सो व्हेन दे ट्रैक वाया देयर मशीन, सारे डिटेल्स वहाँ पे आ जाते हैं. सो ये एक है. एंड नेक्स्ट है डू दे शिप ऑल ओवर इंडिया? अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस दे शिप ऑल ओवर इंडिया, दैट इज़ पैन इंडिया. सो अभी तक मेरा कोई भी पार्सल आउट ऑफ इंडिया नहीं गया है वाया ShipRocket. सो अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज दे शिप ऑल ओवर इंडिया. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज how to get printed if you don't have printer at home, and is printing compulsory? So as mentioned that printer घर पे नहीं है तो क्या करें. Now if you don't have printer at home, मेरे घर पे भी printer नहीं है,
So what I do usually, I get downloaded those 2 or 3 files like अगर आप इन्वॉइस भी दे रहे हैं तो इन्वॉइस, मैनिफेस्ट एंड बिल. सो ये 3 चीज़ें मैं कभी कभी सपोज पेन ड्राइव अवेलेबल नहीं है, कभी कभी गुम हो जाता है पेन ड्राइव, तो यूजुअली आई टेक इन पेन ड्राइव या फिर आई मेल टू माई सेल्फ. एंड अगर पेन ड्राइव में मैंने लिया है देन आई गो टू द शॉप एंड आई गिव दैट पेन ड्राइव टू द person who is like going to give the print, and I tell them that ये 3 files है, just get me a print of these 3 files, black and white print out मैं ले लेती हूँ. एंड अगर मेल मैंने किया है मैंने खुद को, तो फिर आई जस्ट कनेक्ट देम वाया ब्लूटूथ एंड आई जस्ट या फिर आई जस्ट मेल देम ऑल दोज फाइल्स, सो वो मुझे प्रिंट आउट दे सके. सो अगर प्रिंटर घर पे नहीं है देन यू कैन ऑलवेज फाइंड दिस वे. एंड प्रिंटिंग इज़ कंपल्सरी, हम हाथों से लिख के नहीं दे सकते. द रीज़न इज़ यहाँ पे बार कोड जनरेट होता है एंड दैट इज़ जनरेटेड बाय द सिस्टम इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू मे बी उसमें एड्रेस वगैरह लाइक पिन कोड वगैरह आता होगा डिटेल्स. सो बार कोड जनरेट होता है एंड दिस इज जनरेटेड बाय शिपरॉकेट ओनली विच कम्स इन द बिल. सो आपको बिल का मैनिफेस्ट का प्रिंट आउट लेना ज़रूरी है. यू कांट ड्रॉ द बार कोड. वाइस वर्सा हम जब इंडिया पोस्ट में करते हैं तो हम क्या करते हैं, टू एंड फ्रॉम लिख देते हैं, टू वाला एड्रेस, फ्रॉम वाला एड्रेस, वी गो टू इंडिया पोस्ट एंड वहाँ पे वो लोग बार कोड जनरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द पिन कोड एंड पूरा जो डिटेल है. सो वहाँ पे यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिस्टम हमारी मतलब जनरेट कर रही है और वहाँ पे इंडिया पोस्ट के सिस्टम जनरेट कर रही है. सो वहाँ पे चल जाता है लाइक वी हैव टू राइट दिस टू एंड फ्रॉम, बट हियर यू हैव टू राइट टू एंड फ्रॉम विथ यहाँ पे बार कोड जनरेट होता है. सो प्रिंट आउट कंपल्सरी है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू मेक इनवॉइस एंड बिल. सो हाउ टू मेक इनवॉइस एंड बिल. या बिल हमारा तब जनरेट होगा जब हम डिटेल्स डालेंगे. वी सिलेक्ट द कुरियर सर्विस, हम जो भी सिलेक्ट करेंगे उसके बाद नेक्स्ट जाने के बाद वहाँ पे एक ऑप्शन आता है जनरेट लेबल एंड जनरेट मैनिफेस्ट. सो यू हैव टू क्लिक ऑन जनरेट लेबल एंड देन इफ़ योर पार्सल इज़ ऑलरेडी रेडी और आपका प्रिंट आउट भी जल्दी से होने वाला है देन यू कैन जनरेट द मैनिफेस्ट ऑल्सो, बिकॉज एज सुन एज यू जनरेट द मैनिफेस्ट पिकअप के लिए वो पार्सल रेडी है, इसका मतलब ये है. सो बिल आपका वहाँ से जनरेट होगा एंड जब हम लाइक नेक्स्ट जाएंगे तब देर इज़ अ ऑप्शन कॉल्ड एज सॉरी देर इज़ अ लिंक लाइक कुछ है जहाँ पे ऑर्डर आईडी लिखा है. तो ऑर्डर आईडी पे हम जब क्लिक करेंगे तब वहाँ पे ऊपर ऑरेंज कलर का कुछ लेबल है, वहाँ पे इनवॉइस करके कुछ आता है. सो यू हैव टू क्लिक दैट एंड योर इनवॉइस इज जनरेटेड. सो वो फाइल भी हम डाउनलोड करके प्रिंट ले सकते हैं एंड पुट दैट इनवॉइस इनसाइड योर पार्सल. बिल, इनवॉइस एंड मैनिफेस्ट हैज़ टू बी प्रिंटेड. उसमें इनवॉइस यू कैन पुट इट इनसाइड द पार्सल एंड बिल एंड मैनिफेस्ट जो है वो आपको बाहर रखना है, बिकॉज बिल हम पार्सल पे स्टिक करेंगे एंड मैनिफेस्ट हम वो पर्सन को देंगे, राइट? ओके, आई होप आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन. Okay, so the next question is, do we have to register with courier companies? No, we don't have to register with courier companies. We just make our Shiprocket account, KYC कर लेंगे, wallet में recharge कर लेंगे, that's it. Courier companies का कुछ relation नहीं है. So you can say as a Zomato या Swiggy, हम वहाँ पे order करते हैं and we check the restaurant. सो इट्स द सेम थिंग, लेकिन यहाँ पे हम कुरियर सर्विसेज वहाँ पे लिंक्ड होती है ऑलरेडी. सो आपको इंडिविजुअल किसी कुरियर सर्विस से लाइक रजिस्टर नहीं करना है. यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट देम एंड दैट पर्सन विल कम टू पिक अप द पार्सल. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो हाउ लॉन्ग डज डिलीवरी पर्सन कम फॉर द पिकअप? यूजुअली लाइक लॉकडाउन वगैरह सपोज कुछ भी नहीं है, एवरी थिंग इज़ नॉर्मल. आई होप जल्दी हो जाए नॉर्मल. सो एवरी थिंग इज़ नॉर्मल देन मोस्टली नेक्स्ट डे आ जाते हैं. टिल 7 PM उनका कुछ टाइमिंग है. सो वो लोग आ जाते हैं एंड दे कम, फर्स्ट दे कॉल यू, दे चेक कि
पार्सल रेडी है या नहीं, मैनिफेस्ट रेडी है या नहीं, एवरीथिंग, एंड देन दे कम फॉर द पिकअप. सो मोस्टली 1 day या मैक्स टू मैक्स मेरा अभी तक 2 days गया है. दे हैव कैंसल्ड एंड दे हैव रीशेड्यूल्ड बाय देमसेल्फ. तो मैंने कुछ नहीं किया है, बट पार्सल मेरा पेंडिंग था फॉर 2 days एंड फिर वहाँ से खुद ही रीशेड्यूल होके पार्सल पिकअप हुआ है. सो मोस्टली 1 day में आ जाते हैं. सो व्हाट आई डू इज़ आई प्रिपेयर एवरीथिंग, then I book my parcel via Shiprocket शाम को, evening, and then evening only I take the printout. Then I come home, I stick the label और bill on the parcel, सब ready कर देती हूँ. and next day फिर वो कभी भी आए, like next day कभी कभी morning में आते हैं, कभी कभी they come in the most of the time afternoons में आ जाते हैं, like 3 PM 4 PM तक. so it's like that. The next question is COD अवेलेबल एंड COD के लिए बेस्ट कंपनीज कौन से है, सर्विस कुरियर कंपनीज? फ्रैंकली स्पीकिंग COD अभी मैंने यूज़ नहीं किया है कभी भी. आई हैव ऑलवेज प्रीपेड. सो मेरे क्लाइंट से मैंने पहले ही प्रीपे कर लिया है, सो मैंने नहीं किया है. बट जिसको भी COD करना है, यू हैव टू वेट फॉर फ्यू डेज because I'm going to try for your COD का कैसे होता है, and how does the money gets transferred and when does it get transferred to your account. So COD, that is cash on delivery वाला option, I haven't used it yet, but I will do that and definitely उसके ऊपर एक वीडियो हो जाएगा. So the next is how to recharge and Paytm से recharge होगा क्या? बेसिकली हाउ टू रिचार्ज मतलब हम जैसे बाकी वॉलेट्स हमारे रिचार्ज करते हैं, इट इज़ जस्ट लाइक दैट ओनली. सो लाइक अगर वाइल बुकिंग इफ द अमाउंट इज लाइक हमारे वॉलेट में अगर 50 रुपीज़ है एंड बुकिंग के लिए 70 रुपीज़ होने वाला है, तो देन यू हैव टू रिचार्ज योर वॉलेट जैसे हम बाकी ई-कॉमर्स साइट्स के लिए करते हैं. इट इज़ द सेम वे. एंड पेटीएम से आई डोंट नो एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने पेटीएम से नहीं किया है. पेटीएम से अगर आप कर रहे हो और आपको कुछ डाउट है, सो बेटर फर्स्ट गेट इन टच विद द कस्टमर केयर ऑफ शिप्रॉकेट एंड आप वहाँ पे पूछ सकते हो कि पेटीएम से होगा क्या, बिकॉज वहाँ पे शायद पेटीएम का ऑप्शन नहीं दिया है. लाइक डेबिट क्रेडिट ये सारे ऑप्शंस है, लाइक UPI भीम ये सब, बट इसका ऑप्शन शायद नहीं दिया है पेटीएम का. सो जस्ट चेक इट वंस. Okay, so the next question, do we need website for the login in the Shiprocket? No, you don't need any website. You just need your Gmail ID, your KYC documents ready, and you'll just have to recharge your wallet. So website का कुछ भी connection नहीं है. मेरी भी website है, but I haven't logged in with that website. So ऐसा कुछ भी नहीं है. एंड दैट वेबसाइट अगर है तो ही हम शिप्रॉकेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. देयर आर सो मेनी स्टार्टअप्स हु आर यूजिंग शिप्रॉकेट टू डिलीवर देयर प्रोडक्ट्स. सो सबकी तो वेबसाइट नहीं होती है, सो वेबसाइट की कोई ज़रूरत नहीं है. सो देयर इज़ नो नीड ऑफ वेबसाइट. सो या दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन एंड सारे क्वेश्चंस हो गए हैं. Yes, so I hope I have answered majority questions because बाकी सारे questions जो है वो repeated थे. So I thought better I'll take this opportunity to take some few unique questions जो बाकियों को भी doubt हो सकते हैं and still they are not putting up into the comments. No problem. ये वीडियो से आपको answers मिल जाएंगे. Still, if you have any question, do let me know in the comments so that मैं फटाफट आपको रिप्लाई देके आपका जो भी डाउट है वो सॉल्व कर सकूँ. एंड आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल अगेन. आपने पहले वाला वीडियो अगर मिस किया है, लाइक हाउ डू आई पैक माई प्रोडक्ट, एंड मैंने थोड़ी प्रोसेस कवर की है हाउ टू बुक योर पार्सल वाया शिप्रॉकेट, तो यहाँ पे आई बटन है, यहाँ पे एक पॉपअप आ जाएगा. सो वहाँ पे प्लीज़ आप चेक कर लो कि वो वीडियो का लिंक मैंने वहाँ पे दिया है. सो जस्ट चेक आउट दैट लिंक एंड डू लेट मी नो कि आपको वो वाला वीडियो कैसे लगा, बिकॉज ये वीडियो पे बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेस आए हैं एंड वेरी आई फाउंड दैट रियली दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू. सो
डू लेट मी नो ये वीडियो के बारे में भी बता देना। तो राइट नाउ आई एम जस्ट एंडिंग दिस वीडियो, एंड जो डिटेल वाला वीडियो है वो लॉकडाउन खुलने के बाद ही होगा, बिकॉज एवरीथिंग इज़ रेडी, बट क्या है ना, वो आउट ऑफ स्टेट जाने वाला है एंड मुझे उसमें कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। सो आई एम जस्ट थिंकिंग कि वो प्रॉपरली सेफली जाए, तो मैं बुक नहीं कर रही हूँ अभी, मुझे कोई चांस नहीं लेना है। So I hope you understand, and thank you so much for voting also, those who have voted me in the post. So जिन्होंने votes दिए हैं, so thankful to you. So I'm ending this video, नहीं तो मैं चालू ही हो जाऊँगी, ख़त्म ही नहीं होगा। So thank you so much and bye, take care.